Admissions open. Feel proud to be associated with a brand. Doon International School, a paragon of excellence. We transform kids into exemplary human beings. Refuse to be ordinary. Deeds, not words. Whatever we say, we actually do. آپ جانتے ہیں لداخ میں مختلف بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں کیجول لیبرز ہیں اور دن رات محنت کر کے کام کرتے ہیں، اور کیجول لیبرز کی لمبے وقت سے ایک تیرینہ مانگ ہے، ایک لمبا ان کا ڈیمانڈ جو ہے وہ چلتے آ رہا ہے۔ ان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے، لیکن فی الحال کیجول لیبر کی ڈیمانڈ کو لے کے انتظامیہ فوکس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور ایک بار پھر کیجول لیبرز ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آل لداخ کیجول لیبرز ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور کچھ ممبرز ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے ان کی ڈیمانڈ آخر کہاں پہنچا ہے اور کتنا یہ لوگ انہوں نے ابھی تک اپنے ایشوز کو حکام بالغ تک پہنچانے کے لیے کوشش کیا ہے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیجول لیبرز کے لمبے وقت سے آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ریگولرائز کرنے کی، کہاں پہنچا ہے، کیا استھی ہے؟ سب سے پہلے میں گلستان نیوز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر، جو ہم غریب کیجول لیبروں کا آواز تو آگے تک پہنچانے کی کوشش کی سر۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کا ڈیمانڈ جو ہے ہم ایم پی صاحب کے پاس بھی گیا، ہم ایڈوائزر صاحب کے پاس گیا، آپ یقین نہیں کرے گا سر، ہم 5-6 بار لے گئے سر، اپنے خرچے پہ یہاں سے لے گئے، لیکن ہم لوگوں کا ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے سر، صرف ہم لوگوں کو ریگولائزیشن کرنا ہے۔ ریگولائزیشن کے لیے ہم نے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری سے ساتھ بھی تھا، اس وقت بھی ہم لوگوں کا یہی ڈیمانڈ ہے، اس وقت بھی ہم لوگوں کا یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یونین ٹیریٹری آنے کا ہم لوگوں کو ایک پروفٹ، یہی ایک ہم لوگوں کے حساب سے بول رہا ہوں، یہی ایک پروفٹ ہوگا کہ ہم کیجول لیبروں کو ریگولائزیشن پکا ہو جائے گا۔ ابھی 1 سال ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو ریگولائزیشن کے بارے میں ہم کو کسی نے صرف ہم لوگوں کو منہ پہ بولا ہے، ابھی باقی ہم لوگوں کو آشواسن ہی کے پہ بغیر باقی کاغذ کا کوئی کارروائی ہم لوگوں کو آج تک ہمارے ہاتھ میں۔ آپ نے کہا کہ بار بار یہاں سے کارگل سے اپنے خرچے پہ آپ لوگ لے گئے ہیں، اعلیٰ عہدیداروں سے آپ لوگ ملے ہیں، وہاں سے کس طرح کی رسپانس آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ خاص کر ایم پی صاحب کی زبان سے کس طرح کے ایشورنس آپ کو سننے کو ملا؟ یو ٹی ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کس طرح کے ایشورنس آپ لوگوں کو سننے کو ملا؟ ہم لوگوں کو کرے گا بولا ہے سر، آپ لوگوں کو پورا یونین ٹیریٹری آنے کے بعد آپ لوگوں کو ہی ہم لوگوں کو کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا کرنے سے ہم لوگوں کو کریڈٹ میں ہے، آپ لوگوں کو ہمارا فس اس میں آپ لوگوں کو ہم نے ریگولر کرنا ہے پر ہی فس ختم ہے، باقی ہم لوگوں کے ہاتھ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں آئے سر۔ جس طرح سے بہت کم تنخواہ میں آپ لوگ اپنے جاب کو آگے بڑھاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کتنا دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ یقین نہیں کرو گے سر، ہم لوگوں کو بہت پرابلم ہے سر۔ 6,500 روپے 80,000 90,000 لینے والے آدمی سے بھی پوچھے گا ہم، وہ بولتا ہے ہم لوگوں کو برابر نہیں ہوتا ہے۔ خود ہماری ڈپارٹمنٹ کے آدمی پوچھتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کی آپ لوگوں کو کیسے گوارا ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں کرو گے اس سال ابھی اس وقت ونٹر ویکیشن چل رہا ہے سر، ہم لوگوں کو بچوں کی فیس کا بھی بہت گوارا نہیں ہو رہا ہے سر، ایون ہم لوگوں کو میڈیسن کا بھی پیسہ ہو رہا ہے سر۔ اس وقت ہم لوگوں کو دکاندار سے ادھار لینے کا بھی شرم آ رہا ہے سر۔ ہم لوگوں کو 6,500 روپے میں، آپ یقین نہیں کرو گے سر، یونین ٹیریٹری آنے کے بعد سینٹرل گورنمنٹ کیجول لیبروں کو 18,880 روپے ہے سر۔ ہم لوگ جب سے یونین ٹیریٹری ٹچ ہونے کے بعد ہم لوگ سینٹر سے ٹچ ہے، تب بھی ہم لوگوں کو کیا ہے 6,000، جموں کشمیر کا جو کیجول جموں کشمیر کے ساتھ تھا ہم لوگوں کو 6,600 ایسا کچھ تھا، اس وقت بھی ہم لوگوں کو وہی 600 6,000 کچھ ہے سر، وہ بھی مہینے میں بھی نہیں دیتا ہے سر، ہم لوگوں کو بڑی مشکل میں دیتا ہے۔ ہم انیبل گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں سر کہ ہم لوگوں کا یہ حالات جو ہے آپ حل کر سکتے ہیں سر، گورنر صاحب مہربانی سر۔ چلیے، تو اور کچھ لوگ ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے۔ یعنی چمولوک سے میں جانتا ہوں مشکلہ سختی چاہا مستوں ٹو کہاں چاہ درین سخ لو چوکا چرگ سو سے چاہا مچا چھو نہ پھلنا چاہ رنتا سنگوں سے داسا گاتا ضرور نہ جاگا تو پیتے میں نہ چاہ ورنگ رنگ ابھی شان چو سے جاکشو میں نہ مدو چو مچا دے سے کرنتین نہ چاہ چھنی نہ چاہ ڈپٹی تاسبین پادمن گلا جا حاج زاری جاکن شوری جاک چوغاری چھٹی تھو بندو ہاں ضرور یوں سے نہ دو نہ چاہ تن کھان چاہتے نہ چاہ ضرور سے دو پی چاہ نہ چاہ ٹکن میں بو مچا سو میں نہ چاہ ہا یوں سے خدا دے کر نہ چاہ سوامن واتان سوسی کرا ہوں یوں نہ سومی تاہمے سوسی داسا گاتی افسال زنا مچا خدا شل باتو باسی مچا گاتی تنخواہ ٹیمی میں تھو بات رزگار 6 مہینہ تھو رزگار 7 مہینہ دے گا تھو رزگار لوگ ہو دے گا میں نے تھو بات گاچا تنخواہ ما تھو دار ویدا چھت بو گاچا نہ ہٹی پی بولو نے گاچا نہ گرے تاں چا مہربانی یوزر گاتا گاتی خون کمائی تو زبا چھنا کو گاتا مینات باسی اب چنما نہ گاچا کھا باسی دار بازار باسی میں تھرے میرے میں گاچا تنخواہ می تاں ونو گاچا
gane kyong se zo nga cha changma di ka dera du khan kyang me ne yang rang nang khang wa yo khan ji so me nga cha dia de dishti ya lazvet khoda tak so tha yang nga cha ni wala zena na chen ta ye wo he nga cha di te khabe no nga chi tam kha to nga cha phira ha shiri chana nga cha di te ulta zere no ban chi nga cha sha te ta no nga cha chi bo no da nga cha muskilat yo na nga cha pari no ma so nga cha lo chogan nga cha yong ta na pella nga cha ta na dia nga cha mendar gyar gu me yon me so dia nga cha district ka war ba se duk se nga cha de te अस्पताल सफे जग से क्या ना चाह अब सारियों मांगो यूं से क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में के बारे में आप कहना चाहेंगे जहां पे कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं? मैं आपको पहले अस्पताल के बारे में बोलना चाहता हूँ सर। अस्पताल के 80,000 90,000 तनख्वाह लेने वाले परमानेंट मुलाजिमों को दिन रात का ड्यूटी पड़ता है सर, बारी बारी के ऊपर। इन बेचारों को भी 6,500 में दिन रात इनको भी सर्कुलर के हिसाब के रोस्टर के हिसाब से इन बेचारे 6,000 लेने वालों को भी रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगता है सर। और हमारे PHE डिपार्टमेंट सर दिन रात इन लोग काम करते हैं सर, चाहे आपको फील्ड में हो चाहे आपका टैंकर हो, घर घर पे पाली हमारे PHE ऑफिस पहुंचाते हैं। आप नोटिफाइड एरिया में आ जाओ सर, दिन रात ये बेचारे जब कोई काम जरूरी काम बाजार वाजार साफ करना हमारे नोटिफाइड वाले निकलते हैं सर। आप TFC में जाओ सर, जब भी गवर्नर साहब विजिट करते हैं, MP साहब विजिट करते, कोई भी VIP हमारे करगिल विजिट करते हैं, कोई परमानेंट मुलाजिम आके परमानेंट अटेंडेंट आके उनका खिदमत नहीं करते सर। हमारे कैजुअल लेबर ही उनका खिदमत करते हैं, उनका टॉयलेट साफ करना, उनको टाइम पे खाना लेना हमारे ही कैजुअल लेबर करते हैं सर। ये सारा VIP जो भी आते हैं वो सारा देखते हुए भी कभी एक दिन हम लोगों के बारे में नहीं पूछा है कि आप लोग किस डिपार्टमेंट से हैं, क्या है, किस बिना पे आप लोग काम कर रहे, कोई आके नहीं पूछता है। और उनके परमानेंट मुलाजिम चाहे मैं एनिमल हस्बेंड्री का हूँ, चाहे हमारे डिपार्टमेंट के अफसर कभी भी नहीं बोलते कि दिन रात ये लोग बेचारे काम कर रहे हैं सर, इनका टाइम पे तनख्वाह मिलना चाहिए या इनको रेगुलर होना चाहिए। ये लोग पिछले 25 साल 20 साल से आप यकीन नहीं करेगा सर, PHE का ये जाकिर साहब बैठा हुआ, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ लोग एक्सपायर भी हो चुका है सर, एक्सपायर भी हो चुका है। ये सारा देखते हुए भी हम लोगों का फरियाद सुनने वाला नहीं है। अब हम लोग तो मजबूर है सर, ये हम लोगों का फाइनल है, 1 महीना हम लोग फाइनल दे देते हैं। इसके बाद जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ना, दिन रात ये बच्चों की किताबें तक जलाया है, हड़ताल पे आए। अब हम लोग भी मजबूर है सर, हम लोग रोटों पे आएंगे। इसका जिम्मेवार होगा लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगा इस वक्त। अब हम लोग तो बैठने वाले नहीं है सर, हम लोग तो बिल्कुल मजबूर है। यूनियन टेरिटरी के ऊपर हम लोगों को इतना भरोसा था, आप यकीन नहीं करें। चलो वो तो जम्मू कश्मीर का हो गया, 61,000 का मसला होगा। अभी हम लोग लद्दाख ले और करगिल दोनों के बीच में यूनियन टेरिटरी आने के बाद बोल रहा हूँ मैं, यूनियन टेरिटरी आने के बाद 3100 है या 3000 है कैजुअल लेबर। मैं कैजुअल लेबरों की ही बात कर रहा हूँ और कंसुलेटिव वगैरह की बात नहीं करूँ, मैं कैजुअल लेबर की बात कर रहा हूँ। 3000 है या 3500, इतना कुछ 61,000 छोड़ के ये इतना कुछ है। हम लोग बस इतना यूनियन टेरिटरी इतना तो कर सकते हैं ना। अब हम मजबूर है सर, हम लोग रोड पे आने के बाद इसके बाद हमारे पास तो कोई चारा नहीं है सर। हम बाल बच्चे हम गवर्नमेंट के पास छोड़ेंगे, जो भी करना है करो, हमारे पास कोई चारा नहीं सर। आखिर में हम मीडिया आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर कि हम बेचारा गरीब केजरीवाल लोगों का आधा ये खबर जो है हम लोगों का खबर जो आगे तक पहुंचाने का शुक्रिया अदा करते हैं सर, खासकर थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कैजुअल लेबर के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अस्करी और उनके साथ साथ बहुत सारे इनके साथी हमारे साथ बात की और कैजुअल लेबर्स की जो दुख दर्द हैं वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जिस तरह से कैजुअल लेबर्स का मानना है कि लंबे वक्त से बहुत कड़ी परिस्थितियों में लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लंबे वक्त से डिमांड कर रहे हैं रेगुलराइजेशन को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं UT एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कैजुअल लेबर्स को यकीनन आश्वासन तो दे रहे हैं, यकीन दहानी तो दे रहे हैं, लेकिन इनकी दीवाना मांग जो है रेगुलेशन के ऊपर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त इनके दुख दर्द आपने सुना और इस तरह की और भी स्टोरीज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्हें उम्मीद करेंगे कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद यकीनन दावे बहुत सारे किए गए हैं डेवलपमेंटल चीजों को लेकर और बाकी लोगों के इश्यूज को लेकर, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब कैजुअल लेबर्स की जब आवाज सुनती है तो यकीनन ऐसा लगता है कि कहीं ना और जो इनकी दीवाना मांग है उसके ऊपर जेन्युइनली गौर करने की अशद जरूरत है, लेकिन गौर करते हुए नजर नहीं आते हैं। बने गुलिस्तान के साथ मूसा के साथ मोहम्मद साहब। लद्दाख को जो बजट एलोकेशन इस बार हुआ है वो लगभग 5,958 बजट एलोकेशन लद्दाख को हुआ है और बजट को लेकर लगातार हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से, पब्लिक से और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के रूलिंग और अपोजिशन से रिएक्शन ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कारगिल से एक युवक हैं हसन हुंदुरबानी, उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या रिएक्शन है बजट को लेकर, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? सबसे पहले जो UT बनने के बाद 2 दफ़ा हमने नियर अबाउट 6,000 के करीब बजट देखने को मिला है। तो एक चीज़ बेनिफिट तो है कि आपके पास हेवी अमाउंट
आ रहा है बजट में, लेकिन इसका साथ साथ ये भी एक चीज़ खदशात रहता है कि अगर ये आपकी जो फिक्स टाइम में अगर एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहा है तो आपकी बजट वापस जा रहा है, तो फिर तो देना या ना देना फिर सेम ही हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हमारे काउंसिल का एलएसडीसी करगिल का एक हेड था, उस हेड में अगर आप 31 मार्च तक इस साल के अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए तो वो आपके पैसे उस हेड में वापस रहते थे, 3 साल तक आप उसके ऊपर काम कर सकते थे। लेकिन आज खासकर इस साल का अगर हम 2020 का अगर हम बात करें पिछले साल का, तो उस साल में आपके पास 6,000 करोड़ बजट तो आए थे, लेकिन कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से कुछ काम भी कर नहीं पाए, तो तमाम आपके पैसे वापस चले गए। तो ऐसे बजट के आपको ना फायदा नहीं है जितना आपको पहला फायदा होता था। अगर वही आपका हेड अगर बरकरार रहता, अगर आपके एलएसडीसी का हेड रहता, तो ये वाकई ये एक पॉजिटिव हमारे लिए होता। और यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एमपी साहब से, खासकर जो सेंटर और स्टेट के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो एमपी साहब को ये कोशिश रहना चाहिए कि तो एलएसडीसी ले और करगिल को, खासकर जो आपका हेड था उसको रिस्टोर करने की बहुत उसके बारे में आपको फाइट करना चाहिए, चाहे यूटी लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। तो एमपी साहब को इस इश्यूज़ को उठाना चाहिए ताकि आपकी बजट वापस नहीं जाए। और ख़ासकर लद्दाख में तो कोविड के पेंडेमिक के अलावा भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेंडेमिक ये रहता है कि आपका 12 महीने में से 5 महीने में तो आप काम नहीं कर पाता है, तो ये तो आपका बड़ा पेंडेमिक ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पेंडेमिक में अगर आपका बजट भी वापस चले जाएगा, ऊपर तो दूसरा सोशल पेंडेमिक आ जाएगा, तो इसमें आप एक्सपेंडिचर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ इसमें से मुलाजिम का तनख्वाह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नीडेड बेस का 1-2 काम होगा वो आपका ग्राउंड पे आएगा। बाकी आप उसमें जितना आप वादे करते हैं कि हम ज़मीनी सतह पर काम करेंगे, वो आपका वादा सिर्फ ज़बान तक ही रहेगा, अमली मैदान पे ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को, खासकर हमारी जो जोग्राफिकल पेंडेमिक को आपको सेंटर को जानने की ज़रूरत है कि हम हर साल जोग्राफिकल पेंडेमिक, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है। हमारे एलएसडीसी और एलएसडीसी ले और करगिल को इसको ये समझते हैं, लेकिन इसके ऊपर ना समझ बैठ के यूनिवर्सिटी जो अनाउंसमेंट, देखो अभी जो करगिल में बहुत सारे यूथ डिमांड्स कर रहे हैं कि इसका सेटअप ले और करगिल में दोनों में किया जाए। मेरा आइडिया ये नहीं है, मेरा आइडिया ये है कि आप यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी कायम करे, चाहे ले में करे चाहे करगिल में करे, एक ही जगह पर सेटअप करे, एक ही जगह पे। इसको आप लद्दाख यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे एक ऑफिस वहाँ पे एक ऑफिस, ये इस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलने वाला नहीं है। आप एक जगह पे यूनिवर्सिटी सेटअप करे, फिजिबिलिटी जगह की देखे और कनेक्टिविटी देखे, कम्युनिकेशन देखे, इन सबको देखने के बाद अब यूनिवर्सिटी लद्दाख की किसी भी कोने में आप सेटअप कर सकते हैं। इसमें हमारे कोई खदशात नहीं है। खदशात ये है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरह नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होना चाहिए कि आप नाम लद्दाख का रखेगा, एडमिशन आपके 90% स्टूडेंट्स बाहर से आएंगे, हमारे स्टूडेंट्स को 5% भी यहाँ पे रिजर्वेशन, 10% भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो लद्दाख के नाम पे बाहर वाले के आके यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी सेटअप करना रास्ते पर ले जाने वाले एक बहुत बड़ी साजिश है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी वाकई देना चाहते हैं तो एक जगह पे सेटअप करें, इसका जो भी यहाँ पे आपको एडमिशन होगा, जिस सब्जेक्ट में भी होगा, लद्दाखियों के लिए कम से कम जो 50% रिजर्वेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि ओपन में हम अभी वो लद्दाखी स्टूडेंट्स के अंदर अभी वो सलाहियत नहीं है, कि कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कंप्यूटर ओपन में वो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट्स वहाँ पे निकाले और इससे लद्दाखियों को फ़ायदा हो जाए। तो हमारे एमपी साहब से यही रिक्वेस्ट है, खासकर हमारे एलजी लद्दाख से, कि जब आप ये यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे, आपको लद्दाख की तमाम कम्युनिटी को, तमाम तबके को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। आपको ये नहीं करना है कि आप आला हुक्काम है तो कहीं न कहीं या किसी को पूछे या किसी को ना पूछे आप ऐसे स्टेप ले लें कि हमेशा डेवलपमेंटल के साथ साथ लद्दाख, सिर्फ टूरिज़्म में अगर लद्दाख का नाम है तो ये है कि यहाँ पे देखने वाली चीज़ ज़्यादा ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे पीस है। आजकल की दुनिया में लोग टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पे पीस है, वरना कश्मीर दुनिया में जन्नतुल नज़ीर माना जाता है। आज कश्मीर में टूरिज्म क्यों नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट है, पीस नहीं है, अमन नहीं है। तो एलजी साहब लद्दाख की पीस को, एमपी साहब लद्दाख की इस कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखते हुए जो भी डेवलपमेंटल इशू हो, हम नहीं कहते हैं कि करगिल में मत दे दो, ले में मत दे दो, हम कहते हैं कि सब लोग लद्दाख के नाम पे लाओ, द्रास में दे दो, संस्कार में दे दो, नुब्रा में दे दो, चांगथांग में दे दो, ये लद्दाख की ही धरती है, जहाँ पे भी देना है दे दो। लेकिन लद्दाख के पीस को कभी, कम्युनल हार्मनी को, इंस्टीट्यूशन को कभी ठेस पहुँचाने की कोशिश मत करो। और तमाम लद्दाखियों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करेगा तो ये लद्दाख आज हिंदुस्तान में पीस के लिए माना जाता है। इन फ्यूचर ये पूरी दुनिया में एक अमन का गवारा की हैसियत से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी डिसीजन जब आला हुकाम लेते हैं तो अपील ही है यूथ का
कि लद्दाख जिस चीज़ के लिए माना जाता है, पीस के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है, उसको बरकरार रखें और कोई भी डिसीजन लेता है लद्दाख के सभी स्टेक होल्डर्स को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। ये यहाँ के यूथ का डिमांड है और यूथ का मानना है। तो फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से सबका साथ सबका विकास होता है, ये देखने वाली बात है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।